Good evening, everyone. Welcome to another part of chemistry. So today, what we are going to do is, we'll dive into a very basic concept. So what is how to identify acid, base and salts? Acid, base and salts को identify कैसे करना है? Acid होता क्या है? Base, salt, what are those? होते क्या है acid, base and salts, and how do you identify an acid, a base or a salt? Okay. So it's a very basic concept of chemistry. Chemistry का सबसे जो base केमिस्ट्री है वो आज हम देखेंगे। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि एक एसिड बेस या सॉल्ट को आइडेंटिफाई कैसे करता है। अगर मैंने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है तो हाउ डू आई नो दैट वेदर इट्स एन एसिड, वेदर इट्स अ बेस और वेदर इट्स अ सॉल्ट? सो लेट अस सी दैट। ओके, so in chemistry we have three types of compounds. One is the acidic compounds, the other one is a basic compound, and the another one is a salt. Okay, सो एसिड्स को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है? सो अगर कोई भी कंपाउंड में H हाइड्रोजन और यू कैन से H प्लस आयॉन्स प्रेजेंट है, if there are H plus ions present, then I can say that the compound is an acid. जैसे फॉर एग्जाम्पल if I write HCl, okay, so यहां पर ये जो H है, this when you add it in water it will dissociate into H plus and Cl minus. So अगर मुझे यहाँ पे H दिखता है तो I can definitely say that HCl एक acid है. So HCl which is hydrochloric acid. So यहाँ पर since ये compound में H present है तो I can say that this is a acid. Similarly एक और example देखते हैं. अगर मैंने H2SO4 लिखा, so in this compound also I can see that there is hydrogen over here. So यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये भी क्या हो गया? एसिड हो गया. So this is nothing but sulfuric acid. So any compound that has H plus ions in it are considered to be acid. Another example can be HNO3. HNO3 which is nitric acid, तो इस पे भी H है, तो this is also going to be an acid. If you have H3PO4, so in this compound also there is hydrogen, so this is going to be an acid. So this is called as a phosphoric acid. So acid को identify कैसे करना है? Acids वो compounds होते हैं जिसमें hydrogen या H plus ions present होते हैं. So अगर वहां पे hydrogen present है तो I can definitely say that the compound is acid. Okay. So examples क्या है acid के? You can say HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4. इन सारे compounds में H एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है. दैट इज वाई दे आर कंसिडर्ड टू बी एसिड्स. सो वो कंपाउंड्स जिनमें H प्रेजेंट होता है वो होते हैं एसिड्स. सो हाउ डू आई आइडेंटिफाई एन एसिड? एसिड्स कैन बी आइडेंटिफाइड if there is a H plus ion or hydrogen present in it, then I can definitely say that it's an acid. Okay, so if hydrogen is clear, your acid part is clear, we can move for a base. So acids, they have H ions, H plus ions present in its compound. So जो compounds में H plus ion present होते हैं, they are considered to be acids. Now what are bases? जैसे acids में H होगा तो हम उसको we say it is an acid. वैसे ही अगर कोई कंपाउंड में OH माइनस आयॉन्स आते हैं, सो अगर कोई भी कंपाउंड में OH माइनस आयॉन्स आते हैं, सो आई कैन से दैट इट्स अ बेस. सो इफ देयर आर OH माइनस आयॉन्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, I can say that it's a base. So acids when there are H plus ions, base when there is OH minus ions, like NaOH. So there is an OH minus ion present here, so this is definitely a base. If say there is FeOH thrice, तो इसमें भी OH माइनस है, तो ये भी एक बेस होता है. सो बेस वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें OH माइनस आयॉन्स आते हैं. ठीक है, सो हम यहां पे लिख देते हैं बेसिस have OH minus ions present in its compound.
So acids में H plus ions, base में OH minus ions. Similarly, we have salt. Now salt को कैसे आइडेंटिफाई करना है? जो कंपाउंड में ना ही H plus है और ना ही OH minus ion है, it doesn't have H plus and it doesn't have OH minus. Such kinds of compounds are considered to be salt. So they will have neither H plus ions nor OH minus ions present in its compounds. So salt वो होते हैं जिनमें ना ही H plus ions है ना ही OH minus ions है. So that compound is called as a salt. For example, if I take NaCl, so this is sodium chloride. So can you see यहाँ पर कोई H plus ions भी नहीं है और OH minus ions भी present नहीं है. So ये definitely हो जाता है एक salt. Similarly, if we have say copper carbonate, CuCO3. So in this case, there is no hydrogen, there is no OH minus ions. So this also is a salt. Okay, so acids वो होते हैं जिनमें H plus ions present होते हैं, base वो होते हैं जिनमें OH minus ions present होते हैं, and salt वो होते हैं जिनमें ना ही H plus और ना ही OH minus ions present होते हैं. So this is how you identify acid, bases and salt. So I hope this is clear to you. We'll do some questions on this to identify what are acids, what are bases, what are salt. But this is the general idea कि acids में H plus होते हैं तो it is an acid. कोई compound में OH minus ion दिखा मतलब वो base है और जिनमें दोनों नहीं दिखे that is called as salt. Okay. So with this we'll move forward. So जो आज का topic है we'll move to that. So the next part is how do you identify? Now we know how to identify salt, base or an acid. We know that. Now the question next is, and what is the main topic of this video is, how do we identify whether a salt is soluble or insoluble? अगर मुझे एक salt का sample दिया है without experimenting or without adding it in water or different reagents, how do I know whether the salt is going to be soluble or not? So that is what we are going to do today. So different salts will be given to you and you have to identify whether they are going to be soluble or insoluble. Okay, they can be soluble or insoluble in water, acids, bases, different things. Okay, so first we need to prepare a chart. So this is where I'll write the salts which are going to be soluble. Okay, so soluble salts कौन से होते हैं? So which salts are soluble? कोई भी salt, all salts जिनमें Na plus, K plus या NH4 plus आता है, मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम, अगर ये तीन आयॉन्स दिखते हैं मतलब दे आर डेफिनेटली सोल्यूबल सॉल्ट्स. ये डेफिनेटली पानी में डिसॉल्व होंगे. जैसे कि NaCl. नाउ NaCl में Na आ गया, सो Na will definitely dissolve in water. So any compound that contains Na, K and NH4, अगर ये कहीं पे हमको दिख जाते हैं Na, K and NH4, then I can definitely say that they dissolve in water. Similarly, all sulfates ये भी डिसॉल्व होते हैं. ऑल सल्फेट्स आर सोल्यूबल. इनमें कुछ एक्सेप्शंस है दैट विल गेट टू लेटर ऑन. सो सारे सल्फेट्स जो होते हैं ये भी डिसॉल्व होते हैं. उसी के साथ साथ सारे नाइट्रेट्स, सल्फेट्स का मैं फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं जिसमें SO4 2- प्रेजेंट होगा. सो कोई कंपाउंड जिसमें SO4 प्रेजेंट है तो इट इज गोइंग टू बी सोल्यूबल. अगेन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस दैट विल कम टू लेटर ऑन. सो सारे नाइट्रेट्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज NO3- एंड नाइट्राइट्स. सो नाइट्राइट्स होते हैं NO2-. सो सारे सल्फेट्स, सारे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स ये भी
salts soluble होंगे. With this, okay, so these are certain things. Now remember this, all Na plus, K plus and NH4 plus, इनके कंपाउंड्स अगर ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, or you can say phosphates, carbonates, sulfides, ये जितने भी कंपाउंड्स अगर Na प्लस, K प्लस और NH4 प्लस के आए, मतलब ये कंफर्म हो गया कि दिस विल डिसॉल्व इन वाटर. सो अगर क्वेश्चन में Na प्लस, K प्लस, NH4 प्लस, अगर ये कंपाउंड्स हमको कहीं पे दिखते, ये आयॉन्स दिख गए, मतलब दे आर डेफिनेटली सोल्यूबल इन वाटर. सो याद रखो, सोल्यूबल सॉल्ट्स में Na प्लस, K प्लस एंड NH4 प्लस, दे आर डेफिनेटली सोल्यूबल इन वाटर. सारे सल्फेट्स भी सोल्यूबल होते हैं, सारे नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स भी सोल्यूबल होते हैं. Similarly, even if there are oxides, hydroxides, phosphates, sulfates, ये सब कुछ salts dissolve होंगे. All these salts will dissolve in a solution of water. Okay, is this clear? So this is what the soluble parts contain. इसी के साथ साथ there are chlorides. So all chlorides are also soluble. इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है. सो एक्सेप्शंस आर इन सल्फेट्स एंड क्लोराइड. सो मैंने वहां पे स्टार मार्क किया है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि सल्फेट्स, मोस्ट ऑफ द सल्फेट्स एंड क्लोराइड सोल्यूबल होते हैं, बट कुछ ऐसे क्लोराइड्स या सल्फेट्स होते हैं जो सोल्यूबल नहीं होते. सो दिस इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ डिफरेंट आयॉन्स या कंपाउंड्स और सॉल्ट्स. सो सिमिलरली विद दिस वी कैन मूव फॉर कौन से सॉल्ट्स इनसोल्यूबल होते हैं. नाउ व्हिच सॉल्ट्स आर इनसोल्यूबल? सो इनसोल्यूबल सॉल्ट्स कौन से हैं? ऐसे कौन से सॉल्ट्स हैं जो डिसॉल्व नहीं होंगे? सो ऑल ऑक्साइड्स, जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं ये इनसोल्यूबल होते हैं. जैसे कॉपर ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ओके, विच इज वाटर, एवरीथिंग, ऑल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल. सिमिलरली ऑल हाइड्रोक्साइड्स ये भी इनसोल्यूबल होते हैं, एक्सेप्ट ये वाले Na, K एंड NH4 वाले. बाकी जैसे आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जैसे हाइड्रोक्साइड के लिए आयरन हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ऑल ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड्स आर इनसोल्यूबल. सो सारे ऑक्साइड्स, सारे हाइड्रोक्साइड्स, दे आर इनसोल्यूबल. सो ऑक्साइड्स जनरली एंड्स विथ O2 माइनस एंड हाइड्रोक्साइड्स में OH माइनस होगा. सो अगर कोई भी कंपाउंड में O दिख जाए या OH दिख जाए, दैट मीन्स इट इज कंफर्म कि वो सोल्यूबल नहीं होगा. सो दे आर इनसोल्यूबल सॉल्ट्स. सिमिलरली सारे सल्फाइड्स, ऑल सल्फाइड्स which is S2 minus and sulfides जो होते हैं SO3 minus. सो ये भी सारे इनसोल्यूबल होते हैं. इसी के साथ साथ फॉस्फेट्स, सारे फॉस्फेट्स, ऑल फॉस्फेट्स which is PO4 minus. So ये भी इनसोल्यूबल होंगे. सो सारे ऑक्साइड्स, सारे हाइड्रोक्साइड्स, सारे सल्फाइड्स एंड फॉस्फेट्स, ये सब क्या होंगे? इनसोल्यूबल होंगे. नाउ लेट अस कम टू द एक्सेप्शन पार्ट. सो आई हैव सेड दैट सारे सल्फेट्स सोल्यूबल होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस है. नाउ व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस? सो ऑल सल्फेट्स आर सोल्यूबल, सारे सल्फेट सोल्यूबल होते हैं, बट which sulfates are not soluble? कौन से सल्फेट्स नहीं डिसॉल्व होते? सो यहां पर AgSO4, सो सिल्वर सल्फेट एक ऐसा सल्फेट है जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है. उसी के साथ साथ वी हैव कैल्शियम सल्फेट, वी हैव लेड सल्फेट एंड वी हैव बेरियम सल्फेट. सो ये ऐसे 4 सल्फेट्स है जो डिसॉल्व नहीं होते. इनके अलावा सारे सल्फेट्स डिसॉल्व होंगे, बट दिस 4 सल्फेट्स विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर. ओके. सिमिलरली फॉर क्लोराइड्स यू हैव AgCl,
which is silver chloride. You have mercury chloride, and the most important is lead chloride, PbCl2. Why it is special? ये जो PbCl2 होता है ये हॉट वाटर में सोल्यूबल हो जाता है. So it is soluble in hot water. तो हॉट वाटर में ये सोल्यूबल हो जाएगा, कोल्ड वाटर में वो सोल्यूबल नहीं है. So this is the chart which will help you to identify which compound is soluble and which compounds are insoluble. So let us go through it again. सारे Na plus K plus NH4 plus, अगर Na plus K plus NH4 plus कहीं पे भी दिख गए मतलब they are going to be soluble. सारे सल्फेट्स soluble होते हैं except सिल्वर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, लेड सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट. उसी के साथ साथ सारे नाइट्राइड्स, सारे नाइट्रेट्स ये भी क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं. दीज आर ऑल्सो सोल्यूबल. नाउ लेट अस गो टू द इनसोल्यूबल पार्ट. सारे ऑक्साइड्स इनसोल्यूबल, ऑल ऑक्साइड्स, कोई भी अगर ऑक्साइड आ गया तो इट इज इनसोल्यूबल. सारे हाइड्रोक्साइड्स इनसोल्यूबल है, सारे सल्फाइड्स और सल्फेट्स इनसोल्यूबल है, सारे फॉस्फेट्स इनसोल्यूबल है. यहां पे सारे क्लोराइड्स सोल्यूबल है एक्सेप्ट सिल्वर क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड एंड लेड क्लोराइड. ये लेड क्लोराइड स्पेशल क्यों है? बिकॉज वो हॉट वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, कोल्ड वाटर में इट रिमेन्स इनसोल्यूबल. वैसे ही सारे बाइकार्बोनेट्स, सो यहां पे मैंने कार्बोनेट्स मेंशन नहीं किया है, सो आई विल मेंशन दैट एज वेल. So all the carbonates, so all carbonates so carbonates कौन से होते हैं? CO3 2 माइनस वाले, ये भी सारे क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं. सो ऑल कार्बोनेट्स आर इनसोल्यूबल, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे कार्बोनेट्स इनसोल्यूबल होते हैं. Whereas the bicarbonates, so all bicarbonates, this bicarbonates are soluble in nature. सारे बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट देयर इज NaHCO3 और KHCO3. ये जो होते हैं ये स्पैरिंगली सोल्यूबल होते हैं, मतलब कुछ हद तक ये डिसॉल्व होते हैं. सो दिस आर स्पैरिंगली सोल्यूबल कंपाउंड्स. ओके, ये कुछ हद तक ही डिसॉल्व होते हैं, बाकी सारे बाइकार्बोनेट्स डिसॉल्व होते हैं. बाइकार्बोनेट्स होते हैं HCO3 माइनस. ओके, so using this table we'll be able to identify which salts are soluble and which salts are insoluble. So this chart has to be by hearted, ये आपको याद रखना है to identify whether that salt is going to be soluble or insoluble. So with this let us move on to some questions. So these are some of the questions that I have given. So we'll identify whether the salts are going to be soluble or insoluble. And also we'll try to identify whether it's an acid base or salt over here. So जैसे ये क्वेश्चन दिया है मैंने NaCl, तो इसमें ना ही H प्लस आयॉन्स है ना ही OH माइनस आयॉन्स है. सो जिनमें H प्लस और OH माइनस आयॉन्स नहीं होते हैं that is considered to be a salt. So this NaCl is definitely a salt. So this is a salt. So this NaCl is a salt. And now whether it is soluble or insoluble. So जो भी कंपाउंड में Na plus, K plus या NH4 plus आते हैं, that means वो confirm soluble होंगे. So this is going to be a soluble salt. So जिनमें भी Na plus या K plus या NH4 plus आते हैं तो वो डेफिनेटली क्या है? soluble है. इसी के साथ so ये भी क्या होगा? ये भी एक salt ही होगा. Now there is Cl over here. तो Cl मतलब क्लोराइड. So क्लोराइड्स का देखो, we have written over here all chlorides are soluble except, कौन से exceptions है इसमें? AgCl, HgCl, PbCl2. तो सारे क्लोराइड soluble तो होते हैं लेकिन AgCl soluble नहीं होता है. So we can definitely say over here that AgCl एक salt है लेकिन वो क्या है? insoluble है. So it is an insoluble salt. ये dissolve नहीं होगा.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज ऑल्सो अ सॉल्ट बिकॉज इसमें कोई H प्लस या OH माइनस आयॉन्स नहीं है, सो ये भी एक सॉल्ट है। एंड सिंस यहां पे K आ गया, Na प्लस, K प्लस, NH4 प्लस, तो अगर ये तीन आ गए मतलब ये डेफिनेटली क्या होगा, सोल्यूबल होगा। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ सोल्यूबल सॉल्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इसमें भी कोई H या OH नहीं है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ सॉल्ट। नाउ देयर इज कार्बोनेट ओवर हियर। सो कार्बोनेट्स में हमने क्या देखा है, ऑल कार्बोनेट्स, सारे कार्बोनेट्स क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। देयर इज नो एक्सेप्शन हियर, सारे कार्बोनेट्स इनसोल्यूबल होते हैं। सो दैट मींस दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज गोइंग टू बी इनसोल्यूबल। ऑल कार्बोनेट्स आर इनसोल्यूबल, सो ये भी इनसोल्यूबल है। सिमिलरली BaSO4, ये भी एक सॉल्ट है बिकॉज इसमें भी कोई H या OH प्रेजेंट नहीं है, तो ये सॉल्ट है। सारे सल्फेट्स सोल्यूबल होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है, ऑल सल्फेट्स आर सोल्यूबल, बट सल्फेट्स में एक्सेप्शन है। कौन से एक्सेप्शंस है, AgSO4, CaSO4, PbSO4 एंड BaSO4। तो BaSO4 इनसोल्यूबल होता है, सारे सल्फेट सोल्यूबल होते हैं, लेकिन जो BaSO4 है दैट इज गोइंग टू बी इनसोल्यूबल। सो यहां पे BaSO4 क्या हो गया, इनसोल्यूबल हो गया। सो दिस इज ऑल्सो इनसोल्यूबल इन नेचर। सिमिलरली FeOH थ्राइस, तो कैन यू सी हियर, यहां पे कोई H नहीं है लेकिन OH माइनस प्रेजेंट है, तो ये एक डेफिनेटली सॉल्ट नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी अ बेस। तो FeOH थ्राइस इज अ बेस एंड ऑल हाइड्रोक्साइड, सारे हाइड्रोक्साइड, सो OH माइनस क्या होता है चेक करो। सो ऑल हाइड्रोक्साइड्स OH माइनस, सारे हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं नेचर में। सो सारे हाइड्रोक्साइड्स इनसोल्यूबल, दैट मीन्स दिस बेस इज ऑल्सो इनसोल्यूबल इन नेचर। तो ये भी एक इनसोल्यूबल बेस है। नेक्स्ट गोइंग टू MgSO4, दिस इज ऑल्सो अ सॉल्ट बिकॉज H प्लस नहीं है, OH माइनस आयंस नहीं है, सो ये भी एक सॉल्ट है। सिंस इसमें SO4 मतलब सल्फेट ग्रुप है, सारे सल्फेट्स सोल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट AgSO4, BaSO4, CaSO4 एंड PbSO4, तो ये चारों उसमें नहीं आते, सो दिस इज गोइंग टू बी अ सोल्यूबल सॉल्ट। नाउ वी हैव CuS विच इज कॉपर सल्फाइड, ये जो S है ये सल्फाइड है, सो ये एक सॉल्ट है, दिस इज ऑल्सो अ सॉल्ट। नाउ कॉपर सल्फाइड, ऑल सल्फाइड्स क्या होते हैं चेक करो, सारे सल्फाइड्स, सो ऑल सल्फाइड्स आर सोल्यूबल या इनसोल्यूबल, ये देखो सारे सल्फाइड्स होते हैं इनसोल्यूबल, सो ऑल द सल्फाइड्स आर इनसोल्यूबल विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो यहां पर ये सॉल्ट होगा एंड ये क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी इनसोल्यूबल सॉल्ट। सिमिलरली NaOH, सो आ गया OH, सो इफ देयर इज OH दैट मींस दिस इज अ बेस, सो OH आ गया मतलब ये एक बेस है। नाउ सिंस देयर इज Na प्लस, K प्लस, NH4 प्लस, अगर ये आ गए मतलब वो कंफर्म सोल्यूबल होगा, सो ये बेस है और ये सोल्यूबल है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ सोल्यूबल बेस। द अबव वन, द सिक्स्थ वन जो हमने किया था वो इनसोल्यूबल बेस है और ये वाला सोल्यूबल बेस है। मूविंग ऑन टू द 10th वन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो इसमें भी OH आ गया मतलब ये भी एक बेस है एंड सारे हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, इनसोल्यूबल एक्सेप्ट दिस Na, K एंड NH4 प्लस, सो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, सो दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है और ये इनसोल्यूबल होगा। So moving on to the next part, lithium phosphate. So lithium phosphate, सारे phosphates क्या होते हैं, all phosphates are insoluble without any exception, सारे phosphates insoluble होते हैं, so all phosphates are insoluble, so ये भी एक salt है and it is an insoluble salt. Moving on to the next one, this is aluminium nitrate, no hydrogen, no H minus ion, मतलब ये एक बेस सॉल्ट हो गया। नाउ इसमें जो NO3 आया, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रेट, सो नाइट्रेट चेक करो, सो दिस इज नाइट्रेट, सारे नाइट्रेट्स किस में आते हैं, सोल्यूबल वाले पार्ट में आते हैं, सो ऑल नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल विदाउट एनी एक्सेप्शंस, सो ऑल नाइट्रेट्स क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी सोल्यूबल इन नेचर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, KBr, ये भी एक सॉल्ट होगा,
बिकॉज इसमें ना ही H है ना ही OH माइनस आयन है, KBr। नाउ ये मैंने यहां पे दिया नहीं है लिख के, बट मैंने ये मेंशन किया है कि सारे क्लोराइड सोल्यूबल होते हैं। सो अगर क्लोराइड सोल्यूबल होते हैं तो फ्लोराइड्स भी होते हैं, ब्रोमाइड्स भी होते हैं, आयोडाइड्स भी होते हैं। सो क्लोराइड्स की तरह ब्रोमाइड्स भी सोल्यूबल होते हैं, एक्सेप्शन में यही आएंगे। ओनली डिफरेंस वुड बी AgCl के जगह पे यहां पे AgBr आ जाएगा, HgBr आ जाएगा और PbBr2 आ जाएगा। ओके, सो सारे क्लोराइड, सारे ब्रोमाइड, सारे आयोडाइड्स ये क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। सो जैसे क्लोराइड्स की तरह KBr इज अ सॉल्ट एंड इट इज ऑल्सो सोल्यूबल इन नेचर। एंड यहाँ पे K आ गया, मतलब इट इज कंफर्म दैट इट इज गोइंग टू बी सोल्यूबल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जिंक कार्बोनेट। सो ये भी एक सॉल्ट है, नो हाइड्रोजन, नो OH माइनस आयंस। जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट्स मतलब ऑल कार्बोनेट्स आर इनसोल्यूबल। ये सारे कार्बोनेट्स क्या होंगे? इनसोल्यूबल होंगे। ऑल कार्बोनेट्स आर इनसोल्यूबल। Moving on to the next one, AgNO3, this is also a salt and nitrate है। सारे nitrates insoluble नहीं होते, सारे nitrates soluble ही होते हैं। There is no exception for it, so all nitrates are soluble. So silver nitrate will be soluble in nature. Moving on to the next 5 questions, we have BaCl2. Now BaCl2 भी एक salt है, सारे क्लोराइड सोल्यूबल होते हैं, बट इस पे एक्सेप्शन है। लेट अस सी वेदर BaCl2 comes in that category. So BaCl2 doesn't come in the category. सिर्फ AgCl, HgCl और PbCl2 है। So यहां पे I can definitely say that it's a salt, but it is soluble. So ये भी soluble है। Na2S, सोडियम आ गया, Na+ आ गया, तो कंफर्म सॉल्ट है एंड सोल्यूबल है। तो अगर Na आ गया मतलब वो कंफर्म सोल्यूबल है। दिस इज कोबाल्ट फॉस्फेट, इट इज ऑल्सो सॉल्ट, कोई H या OH प्रेजेंट नहीं है। फॉस्फेट है मतलब सारे फॉस्फेट्स इनसोल्यूबल होते हैं, नो एक्सेप्शन टू इट। सो ये भी क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं। NiOH, सिंस इट इज OH माइनस, कैन यू सी OH आ गया यहाँ पे, सो ये एक बेस होगा। सो दिस इज निकल हाइड्रोक्साइड, सो इट्स अ बेस। ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसोल्यूबल, सारे हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं, तो ये भी क्या आएगा? इनसोल्यूबल में आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट वन विच इज MgCl2, सारे क्लोराइड्स सोल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट PbCl2, AgCl या HgCl, ये उन कैटेगरी में नहीं आता। सो इट इज अ सॉल्ट एंड इट इज डेफिनेटली सोल्यूबल। So this is how you identify an acid-based salt and whether those compounds are going to be dissolved in water, मतलब क्या वो soluble होंगे या वो insoluble होंगे। Remember the table that we had drawn previously, ये table important है। Once you understand this table, you will be able to identify whether वो salt soluble होगा कि नहीं होगा। ये solubility के basis पे हम color भी identify कर सकते हैं, basically what the color of the compound is going to be. So this chart is important. It will help you to understand the solubility or insolubility of different salts, and it will also help you to identify what is an acid, what is a base, and what is a salt as well. Okay, so this is the main topic that I wanted to cover. It's a very simple topic. The chart has to be remembered, which will help you in the future to identify the salts, acid, base, क्या होते हैं, कौन से soluble है, कौन से insoluble है. So this is what you have to practice. And some of the questions that I have done, please solve it again, which will help you in the future. So questions practice करो, identify कौन से salt होते हैं, कौन से acid होते हैं, कौन से base होते हैं। एक बार ये वीडियो वापस देखो, acids क्या होते हैं, I'll show just एक पार्ट बताता हूं। So ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक acid अगर आइडेंटिफाई करना है, एक base अगर आइडेंटिफाई करना है और एक salt आइडेंटिफाई करना है। So अगर ये पार्ट समझ गया तो you'll be able to identify what are acid, what are bases and what are salts. Once you identify these things, you will be able to identify whether they are soluble or insoluble using this chart. So this is what is important about this video. Thank you. Let us meet next time.